Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry theory class. Yes, today is the bioenergetics part 3 in which we will cover redox potential and biological function of ATP and cyclic AMP. What is the redox potential? First you have to understand about the redox. What is the redox reaction? They are inherently coupled and involve both. Yes, if donating of electron, that it is oxidation, accepting of the electron, it is reductions. Yes, generally redox reactions having two half. Yes, one he first one is oxidation half and second one is reduction. Yes, if particular compound donate electron, then it is reducing agent. If particular compound accept, then it is oxidizing. In this we will study redox potential. What is redox potential? Measure the transfer of electron, means the transfer of electron can be measured by the reduction potential. Yes, it is denoted by the E naught. Free energy, it is also transferred via movement of these compounds. Let's start. Redox potential E naught. Yes, E naught. In this, oxidation reduction potentially or simply redox potentially is the measurement of the tendency of redox pair, either lose or either gain of the electron. Yes, donating of electron is oxidation, accepting of electron is the reduction. Yes, in redox potential what we do, the transfer of electron can be measured by the reduction potential E naught. रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट redox system. Yes, given in the table. Yes, in next slide I have right here table. In this, succinate is transferred or converted in the alpha ketoglutarate, alpha keto, then it is the, what is the negative 0.67 is the redox potential of succinate transferred into the ketoglutarate. Yes, and there are the vice versa. यह मोर नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, हमने यहाँ पे बात की थी नेगेटिव की और यहाँ पॉजिटिव है. तो नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो नेगेटिव का मतलब है मोर नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, मोर नेगेटिव देन ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज द लूज इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन. यस, लूज और क्या है? डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द oxidation. More negative redox, it means greater tendency to the lose electron, and lose electron, what is the lose electron? Comes in the oxidation. If we more positive, देखिए यदि more positive, then greater tendency किसी के accept electron, in accept electron is the reduction. Yes, first pair is more negative and another redox pair is the more positive. This is the redox potential. Redox potential is directly related to the change in the free energy. If we बात करें what is the important, what it come in the objective and MCQ. Yes, NAD, NADPH, FMN, and then one coenzyme Q, cytochrome C and cytochrome B. These are the important. Function of ATP. First अपने था what is the redox potential, and next one is function of ATP and cyclic AMP. Yes, function of ATP क्या है? Yes, function we will study in the detail. First is the metabolism. First we have already discussed about the all biomolecules like protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid. They all are synthesis. When they all are synthesis, we have to require any energy. Yes, when synthesis of polysaccharides, amino acid, DNA, RNA, then ATP is released or ATP is consumed. This is the metabolism in ATP. If we talk about the movement, then muscle contraction. What is the muscle contraction? Muscle contraction मतलब टाइटनिंग और लूजिंग ऑफ द मसल्स. यस, यदि हम किसी भारी चीज़ को उठाएं, हमें बहुत वो लगाना, फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब क्या होगा? तो टाइट, और जब वी हैव फेल, जब हम इसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तब हमें हमारे अपने आप ही मसल्स लूज होते हैं. दिस इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन. यस, इफ वी टॉक अबाउट इन वन वर्ड्स, tightening and loosening of the muscles, the muscle contraction. Yes,
एनर्जी टू अलाउ मसल फिलामेंट्स टू स्लाइड करने के लिए, मूव करने के लिए. यस, मायोसिन एक्टिन आर द टू प्रोटीन, दे आर वर्क इन द मसल फिलामेंट. देन एनर्जी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जब हम ये सब काम कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल फिलामेंट्स को स्लाइड करने के, तब हमें इन सब काम के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट है, इसलिए इट कम इन द फंक्शन ऑफ द एटीपी. हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब चेंज इन द शेप ऑफ द कैरियर प्रोटीन. यस, कैरियर प्रोटीन क्या है, ऑल यू नो, बट कैरियर प्रोटीन आर द प्रोटीन दैट कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टू द अनदर. ठीक है, लिपोफिल कहाँ लोकेटेड होता है, ये आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है. क्या काम करता है, वापस बता, जब ये करता है कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर, दिस इज द वर्क ऑफ द कैरियर प्रोटीन. इफ वी talk about the secretion means the formation of lysosome in the exocytosis. lysosome you know, but exocytosis क्या है, lysosome क्या आपकी membrane bound cell है, organic है, that contain the digestive enzyme. If we talk about the lysosome, what is the lysosome? lysosome are the membrane bound cell है, organelle है, जो क्या कर रखता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है. अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या है आपका, जैसे कोई भी मेम्ब्रेन पर हम लोग की वायरस, फंगस या कोई मेम्ब्रेन जब एक्सेस में बढ़ जाती है, उसको टोन करना है, वॉर्न करना है, तब ये सब वर्क प्रोसेस किस में आएगा, एक्सोसाइटोसिस में. ठीक है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज द डाइजेशन ऑफ मटीरियल taken up from the outside of the cell by the exocytosis. This is the exocytosis. केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में क्या, फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटीपी. यस, एटीपी में पी फॉस्फेट ट्रांसफर करता है वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ये एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी. तो क्या करता है, जो लोअर एनर्जी को मोर रिएक्टिव बना देता है. यस, हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म में भी इसका काम है, एनाबॉलिज्म जो हम लास्ट टॉपिक में आप डिस्कस कर चुके हैं बायोएनर्जेटिक पार्ट 2 में, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म. यदि हम अब बात करें नेक्स्ट की, तो समरी में अब हमने पढ़ लिया एटीपी इज ए यूनिवर्सल करेंसी ऑफ द सेल, क्यों है ये सब बात कर ली. यदि हम बात करें, दिस इज द कॉमन इंटरमीडिएट इन मैनी रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन सब के अंदर ये बहुत हेल्पफुल करता है एटीपी. यस, लिंक एनर्जी बिटवीन द एनर्जी रिक्वायरिंग एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इनके बीच में हमने लिंक पढ़ा था, लिंक बिटवीन द, इट इज द यूनिवर्सल. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स में रहता है, इट इज यूनिवर्सल विद ऑल लिविंग थिंग्स. ईजिली पार्टिसिपेट इन मैनी रिएक्शंस, जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लूकोजेनोलाइसिस, जो सभी रिएक्शंस हैं उन सब में ईजिली पार्टिसिपेट करता है. ड्राइव मोस्ट बायोलॉजिकल फंक्शंस, बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस पर भी वर्क करता है. यस, डाइजेशन में जैसे हमने बताया था HCl का सिक्रेशन, तो डाइजेशन में बहुत वर्क हेल्पफुल करता है. वन मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज एंड परफॉर्म द लार्ज नंबर, एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है एटीपी, बट इसका वर्क कितने सारे में, तो दिस इज द लार्ज नंबर ऑफ जॉब परफॉर्म बाय द एटीपी. नेक्स्ट एंड मोस्ट important cyclic AMP, this is the last topic of unit 1 biomolecule. Cyclic AMP, so first we have to introduce by the cyclic AMP. What is the cyclic AMP? This is the cyclic nucleotides. Yes, cyclic nucleotide. केमिकली हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकली इट इज 3' 5' एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. क्या चीज़ है ये, 3' 5'. ठीक है, ये कैसे सिंथेसाइज होगा, ठीक है, इट इज सिंथेसाइज कहाँ से, एटीपी से होगा, विद द विच एंजाइम हेल्प करेगा, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की हेल्प से. और कौन सा आयन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन, Mg आयन. ठीक है, जब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं अच्छे से, एटीपी से ये साइक्लिक एएमपी बन रहा है, विच एंजाइम हेल्प कर रहा है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव. यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की हेल्प से ये एंजाइम अच्छे से वर्क करेगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम. देन एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ, देन देखेंगे हम साइक्लिक एएमपी बन गए. अब यहाँ देखिए फॉस्फेट मॉलिक्यूल सब लोग सिंगल मॉलिक्यूल, बट दिस इज नेम इज साइक्लिक, मतलब ये साइकिल्स के रूप में, ये यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से पूरा साइक्लिक के रूप में बन गया, दिस दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज साइक्लिक एएमपी. यस,
अब साइक्लिक एएमपी कैसे डिग्रेड, यहाँ सिंथेसिस हुआ, अब ये वापस डिग्रेड होके फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम की हेल्प से डिग्रेड होके ये एएमपी बनाता है। ओके, अब हमको लैंग्वेज में देखिए, डिग्रेडेड टू 5 प्राइम एएमपी। यस, विच एंजाइम हेल्प करेगा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। यस, डिग्रेडेड कैसे हुआ, इस एंजाइम की हेल्प से एएमपी के अंदर। इट इज द सेकेंड मैसेंजर, हम साइक्लिक एएमपी को सेकेंड मैसेंजर भी बोला जाता है। साइक्लिक एएमपी इज ऑल्सो नॉन एज द सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर का जहाँ नाम आ जाए, दिस इज द साइक्लिक एएमपी। यस, ये हम पढ़ चुके हैं, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा एंड ये वाला एंजाइम हेल्प करेगा एडिनाइल साइक्लेज विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, देन इट इज डिग्रेडेड इन द एएमपी विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। इफेक्ट ऑफ साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी के इफेक्ट क्या है देखिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इट ऑल्टर द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म को बदल देगा। यदि ग्लाइकोजन ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है एंजाइम रेगुलेशन के टाइम पे, तो आपका जो अपने साइक्लिक एएमपी है वो क्या वर्क करेगा, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को बदल देगा, उसको चेंज कर देगा। Altered gene transcription, transcription क्या है, it is the process what making the RNA copy of the gene sequence. Yes, it can also say transcription is the process by which the information in the strand of DNA is copied into the new molecule of messenger RNA, mRNA बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी बदलता है। अब हार्मोन एस्ट्राडायोल सिक्रेशन, एस्ट्राडायोल हार्मोन का सिक्रेशन करता है। क्या चीज़ है ये एस्ट्राडायोल हार्मोन, एस्ट्राडायोल हैव सेवरल फंक्शंस, किसमें, इन द फीमेल बॉडी। मेन फंक्शंस क्या है, इट इज मैच्योर एंड देन मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर और मेंटेन करता है। एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इंक्रीज एस्ट्राडायोल लेवल। यस, फॉर द मैच्योरेशन दिस इज द, एंड एज वेल एज थिकनिंग ऑफ द यूट्रस, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज हेल्पफुल इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, इट इज द मैनी फंक्शन इन द फीमेल बॉडी, दिस इज द एस्ट्राडायोल। इफ वी फोर्थ पॉइंट, ऑल्टर्ड आयन ट्रांसपोर्ट, HCl सिक्रेशन द स्टमक, ये अपने बॉडी में जो डाइजेशन में HCl में हेल्प करता है। ठीक है, जो HCl अपने स्टमक में सिक्रेट हो रहा है वहाँ भी ये हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, ये जो आयन का ट्रांसपोर्ट है उसी को बदल देगा। वाटर डीअब्जॉर्प्शन बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड, एंटी डायूरेटिक इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू कंट्रोल द फ्लूइड बैलेंस इन अवर बॉडी। फ्लूइड बैलेंस को कर रहा है क्योंकि रिड्यूस करेगा बाय द रिड्यूसिंग यूरिनेशन को। डायूरेसिस का काम क्या है, इट प्रोड्यूसिंग यूरिनेशन, देन इट इज अपोजिंग ऑफ डायूरेसिस। एंटी डायूरेसिक इज द अपोजिंग ऑफ डायूरेसिस। एग्जाम्पल क्या है, एडी है जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन, इनका दोनों का वर्क है एज ए एंटी डायूरेटिक का, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, कैसे, यूरिनेशन को कम करके। कैफीन क्या वर्क कर रहा है, वैसे तो कैफीन यूरिन प्रोड्यूसिंग है, मतलब डायूरेसिस है, पर यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, इट इनहिबिट द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, मतलब ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है देखिए, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का काम क्या है, क्यों इनहिबिट कर रहा है ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को, क्योंकि जो सभी सेलुलर लेवल पर कैफीन इसको ब्लॉक करता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज PDE, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PDE। ठीक है, PDE फुल डॉट शॉर्ट में बोला। PDE का काम क्या है, ये क्या करती है, नॉर्मली ब्रेक डाउन कर देती है सेकंड जो अपना केमिकल मैसेंजर है। सेकंड मैसेंजर किसको बोले, साइक्लिक एएमपी को। ये साइक्लिक एएमपी को ब्रेक करने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, जिससे अब क्या होगा, ये सारे फंक्शंस में इम्पेयरनेस आ जाएगा, डिजीज होने के चांसेस हो जाएंगे। दैट्स वाई कैफीन का यहाँ काम क्या है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी। अब ड्रग्स, सैल्ब्यूटामोल एंड थियोफाइलिन बोथ आर द, what the work of the salbutamol and theophylline, both are drug in the use in the respiratory disease. Yes, कैसे करेगी, क्या इसका मैकेनिज्म रहेगा, इट ओपन अप द मीडियम एंड लार्ज एयरवे इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ये ओपन कर देगी। ठीक है, किनको, एयरवेज को, जिससे हम इनहेल
इनहेलर के लिए हम लोग अस्थमा में जो अब इनहेलर यूज़ करते हैं, अस्थमा पंप यूज़ करते हैं, उसके अंदर यही ड्रग्स यूज़ होते हैं, जिससे क्या हम लोग सांस लेने लग जाते हैं और हम एयरवे जो क्लीन हो जाते हैं, जिससे अच्छे से इजीली हमें ऑक्सीजन आने लग जाती है, हम लोग आराम से इनहेल कर पाते हैं. ओके, द ड्रग्स सैल्ब्यूटामोल, थियोफैलिन बोथ आर द यूज इन द रेस्पिरेटरी डिजीज. समरी के हमने इतना जो डिटेल में पढ़ा, अब इसको हम शॉर्ट में बोले तो साइक्लिक ईएमपी इज मीडिएटर ऑफ हार्मोन, मीडिएटर करता है हार्मोन एक्शंस में, मीडिएटर का वर्क करता है. सेकंड मैसेंजर है. इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज. प्रोटीन काइनेज इज इन द एंजाइम हेल्प इन द ग्लाइकोजन सिंथेसिस. यस, कॉज क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना. लिपोलाइसिस मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करना. मॉड्यूलेटेड ट्रांसक्रिप्शन हम जो पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is the process in which formation of strand of DNA is copied by the new molecule messenger RNA. This is the transcription. Activate करता है हार्मोन सिक्रेशन को, जो हम बात कर चुके हैं एज ए एंटीडायरेट मतलब ADH एंड ऑक्सीटॉक्सिन की. और इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन हम बात कर चुके हैं HCl के स्टमक के अंदर. रेगुलेट सेल परमिटिव वाटर जब हम बात कर चुके हैं एंटी डायूरेटिक. यस, दिस इज द समरी ऑफ द साइक्लिक EMP. Yes, this chapter is complete. Unit 1 has been finished. Yes, if you have any doubt, any query, please write in the comment box. Thank you so much. And like, comment and share and subscribe for my new one. Thank you.